Big verdict, which of course has now concluded. Each of the 5 judges who've been part of that Constitution bench hearing the same-sex marriage case have given their individual verdicts, their individual arguments, and I think overall the verdict is out that the Supreme Court has ruled not in favor of same-sex marriage so far to be legalized. They have said that this is not a fundamental right. They have, of course, given several, rights for queer couples and same-sex, people in relationships and others, of course, of the LGBTQIA plus community. They've given different rules for them, which they believe should be followed, must be, ensured to them in India. They've also allowed adoption rights for same-sex couples. They have said that they have the right to adopt a child, but as far as marriage is concerned, the Supreme Court has stopped short of legalizing it. The Supreme Court has said that a committee should be formed, as the centre has advocated. They've also said this should be in the ambit of Parliament to make a law on this. Reactions pouring in. Let's quickly play them out. And we are happy that Supreme Court has held that this power can't be given to same sex for having the marriage, because India is a ancient country. Indian population is having its values in society. So by not providing this right, we hail the judgment of Supreme Court on this aspect. आज के इस फैसले का आउटकम क्या मानते हैं सर आप? कानून बनेगा में क्या फायदा हुआ, क्या जोर का झटका लगा या धीरे से लगा, क्या हुआ? इससे फायदा ये हुआ, जो कुछ एलिमेंट इस तरीके का माहौल ख़राब करना चाहते थे, आज उन पर फुल स्टॉप लग गया है। इस तरीके की जो कई बार जो हमारी कुछ फॉरेन पावर्स जो इंडिया को डेवलप होने से रोकना चाहते थे, हमारी जो सोसाइटी, हमारा जो सिस्टम को ब्रेक डाउन करना चाहते थे, आज उनको बहुत धक्का लगा है और हमारी ट्रेडिशंस कंटिन्यू रहेंगे। लेकिन ये तो अधिकारों का मामला है, ये कह रहे थे अधिकार, और कोर्ट ये कह रहा है कि भाई इनका अधिकार तो है, लेकिन वो अधिकार देने का काम संसद करेगी, हम नहीं। हाँ, यही इसीलिए जो ये कहते थे कि हम कोर्ट से करा लेंगे, आज उनको पता चल गया है कि हिंदुस्तान की भी कोर्ट जो हमारा जो सिस्टम को चेंज करने के लिए नहीं है, हमारी सुप्रीम कोर्ट भी जो हैं वो ये मानती हैं कि कानून बनाने का, कानून को अमेंड करने का अधिकार भारत की संसद को है आज, और भारत सरकार का भी यही था। तो आज जीत आम जनता की हुई है, क्योंकि पार्लियामेंट जो है आम जनता की है, वहाँ इलेक्टेड आदमी ही जाते हैं और वो कोई भी डिसीजन ले सकते हैं जो वो चाहते हैं। Sir, there were basically statements made on the adoption, if queer couples can actually go ahead and adopt. What is the clarity on that? Has the adoption rights been given, or has that also not been given? It is yet to be properly studied, and there will be, that is only by mere. All right, so those were, of course, reactions coming in from outside the court to the verdict by the Supreme Court. My colleague Manohar Kesri is joining us. Manohar, it's a historic verdict. The verdict is finally out, but obviously it's come as a blow for the petitioners in this case. देखिए बिल्कुल, लेकिन कहा जाए कि इन लोगों का ये कहना है कि थोड़ी सी निराशा है, लेकिन जिस प्रकार से इनके राइट्स की बात कही गई है, जिस प्रकार से एडॉप्शंस की बात कही गई है, कमेटी बनाने की बात कही गई, तो इन्होंने कहा कि चलिए पूरी नहीं तो सही कुछ तो मिला है। और उन्होंने ये भी कहा कि कोर्ट के पास ये लॉ बनाने का अधिकार नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से कोर्ट ने इनकी बातों को रखा है, खास करके ये भी कहा है कि LGBT कम्युनिटी जो है सो एक शहरी क्लास के नहीं है, बल्कि गांवों में भी महिलाएं भी समलैंगिक हो सकती है। इसे लेकर के कहा है। यहाँ पर कई लोग हैं, हम कोशिश करते हैं इनसे सीधे बात करने की एक बार, क्योंकि जिस प्रकार से कोर्ट के वर्डिक्ट आए हैं, जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम 4 पॉइंट्स को लेकर के बात करेंगे, फैसला सुनाएंगे, तो हम सीधे एक बार बात करना चाहेंगे कि
understand just a minute. चलिए अभी ये बात कर रहे हैं, हम और लोगों से बात करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कोर्ट ने जिस प्रकार से अधिकार दिया है। हमारे साथ आशीष सिन्हा जो एडिटर भी हैं, लीगल एडिटर, बात करें सुप्रीम कोर्ट का जिस तरह से फैसला आ रहा है। आशीष, व्हाट्स योर फर्स्ट रिएक्शन? The first of all, that Supreme Court refused to recognize the same-sex marriage. Supreme Court made it very clear that the marriage is not come under the Article 32. It's a civil right. And the second important thing is that it's a unanimous decision. That means all the 5 judges of the Supreme Court, they agree on the one particular point, that this is not the elite class, because the center, when the hearing took place before the top court of the country, 10 days, the center made it very clear before the top court that yes, this, if you will talk about the same-sex marriage, it's come under only the elite class in urban areas. But Supreme Court 5 judges bench disagree with the center argument and made it very clear, no, this is not only the limited to the urban area. The third important point is that right to adoption, because the Justice D.Y. Chandrachud and Justice Kaul, they have agreed that they should give right to adoption to these same-sex marriage couples. But Justice Bhatt, they have dissent with the verdict which was pronounced by the CJI Justice D.Y. Chandrachud. So it remained to be seen that whether this LGBT community is going to file a review petition in the Supreme Court or not. But yes, of course, it's a setback from the top court of the country. However, the Supreme Court said that yes, central government should set up a committee. That central government, Supreme Court also in his judgment had elaborated that what the committee will work. That the first one is that they have to take care this LGBT community. They have to make a phone line. The third important thing is that they let's talk some people. बिल्कुल बिल्कुल आशीष, मैं आपसे बात करना चाहूँ, जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट रहा है, व्हाट्स योर फर्स्ट रिएक्शन? I was pretty hopeful कि same-sex marriage legalized हो जाएगा, but it didn't get legalized. Whatsoever, I would still have great hopes कि एक ना एक दिन कुछ ना कुछ होगा ज़रूर. And with that hope, I think I would love going ahead in life. सुप्रीम कोर्ट ने कहा आपके राइट्स को लेकर के, उन्होंने कहा कि एडॉप्शंस को लेकर के राइट्स मिलना चाहिए। आप लोग के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, किस तरह के प्रॉब्लम फेसेस करने पड़ते थे, और अब जब सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया है तो किस तरह के आप लोग को इससे हेल्पफुल? I think when you talk about discrimination, it's something that we face on daily basis. And now that the government, now that the SC has said, regulated the government to bring anti-discrimination policies and all of that, I think it's going to help us in some way or the other. Otherwise, even in the metro stations, we always get eve teased, or if not eve teased, then we are kind of molested. Eye molestation or some verbal molestation or something of that sort. So I think our expression towards who we are shouldn't become a barrier in our accessibility to things in life. बिल्कुल, तो इस तरह से इन्हें कई चैलेंजेस फेस करने पड़ते थे, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के बाद जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकारों को भी इस तरह से दिशा निर्देश देना चाहिए और उन्हें दिया जाए ताकि इन्हें पुलिस भी हरास ना कर सके, तमाम जो सरकारी एजेंसियां हैं इनके राइट्स का ध्यान दें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल्स 21 की भी बात की है, 32 की भी बात की है। तो हमारे साथ कई लोग हैं, इनसे हम बात करेंगे और लगातार हम इनसे बात करने की कोशिश भी कर रहे हैं कि जिस तरह से इन लोगों के राइट्स को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने बात की है, क्योंकि 5 जजों के बेंच ने अपना अलग अलग फैसला दिया और उसके बाद कंपाइल करके जिस प्रकार से फैसला सुनाया गया है, तो ऐसी स्थिति में कहा जाए, और हमारे सहयोगी आशीष भी बता रहे थे किस तरह से जस्टिस कौल ने भी CJI DY चंद्रचूड़ की बात रखी और उनके पक्ष में भी उन्होंने कहा। तो ऐसी स्थिति में लगातार इन्हें कहा जा रहा था कि इनके अधिकार का हनन हो रहा है, इन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी कि गांव की जो महिला है वो भी समलैंगिक हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में हमारे साथ कई लोग हैं, उनसे भी हम बात करना चाहेंगे कि थोड़ा सा आप इधर आ जाइए, क्योंकि वो बात कर रहे हैं। थोड़ा सा, क्या नाम है आपका? हाय, माय नेम इज़ विक्रांत। विक्रांत जी, जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपके राइट्स को लेकर के एक कमेटी बना दी जाएगी जिसमें आपकी जो भी फैसिलिटीज़ होंगे उनसे लेकर के चर्चा होगी, आप लोग की भी टीम्स उसमें शामिल होगी, तमाम चीज़ें उन्होंने कही, क्या कहेंगे?
पहली बात इनफैक्ट मुझे मैं बहुत वेलकमिंग करता हूँ जो भी CGI ने कहा या सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने डिसीजन लिया है, उसमें एडॉप्शन को लेकर बहुत अच्छी बात कही है जो कि सुपर वेलकमिंग है। वी आर रियली डिलाइटेड कि हमने ऐसा कुछ किया है। आई थिंक बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। उन्होंने पार्लियामेंट को आदेश दिया है कि आप कमेटी बनाकर करो। ऐसा पहले भी हुआ है इनफैक्ट जब शशि थरूर ने एक वो बिल लेके आए थे जहाँ पे करने की बात कही थी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं उस केस में। सो हमको ये बार बार कोर्ट के चक्कर काटने नहीं चाहिए। इनफैक्ट मुझे लगता है गवर्नमेंट को ऐसा करना चाहिए कि जिससे हमको भी वो एक व्यक्तिगत अधिकार मिले जो एक कोई भी इस इंडिया एज अ सिटीजन को अधिकार मिलता है। मेरा एक ही चीज़ है, अगर मैं भी सेम टैक्सेस पे करता हूँ, सारी चीज़ें मैं भी वैसे करता हूँ एक रेगुलर सिटीजन की तरह से, तो मेरे भी उतने ही अधिकार है जितने किसी के हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कही है सामाजिक ताना बाना को लेकर के, परिवार को लेकर के, रिश्ते को लेकर के, इसे लेकर के आप क्या कहें? आई डिडंट गेट योर क्वेश्चन, सॉरी। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि मनुष्य का जिस तरह से जन्म हुआ है, जिस प्रकार से समाज की बात करते हैं, जिस तरह से प्यार मोहब्बत की बात करते हैं, रिश्ते की बात करते हैं, तो इसे लेकर क्या? मुझे लगता है अब टेक्स्ट बुक्स में इनफैक्ट लड़का लड़का दिखाना बहुत ज़रूरी है, लड़की लड़की दिखाना ज़रूरी है। जब आप एक फैमिली की बात करते हैं तो फैमिली में सिर्फ एक लड़का, एक लड़की और एक बच्चा नहीं आता है, उसमें एक लड़का लड़का और एक बच्चा हो सकता है। जैसे हमने अडॉप्शन वाली बात कही है, एक लड़की लड़की और एक बच्चा हो सकता है, वो भी हो सकता है। ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को स्कूल टाइम से ही पता चले कि व्हाट इज़ गे, व्हाट इज़ लेस्बियन, एंड उसको लेकर के एक ऐसा एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाए ताकि जब बच्चे बड़े हो तो उनको ये आइडेंटिटी ना ढूंढनी पड़े और समाज को एक टाइम पे चेंज अपने आप को करना पड़ेगा। एंड आई थिंक ये बहुत राइट टाइम है इंडिया एज अ कंट्री के लिए टू चेंज करने के लिए। मैं बहुत फेवरेबल में हूँ, जैसा कि कहा गया है, बहुत से लोग इस पे काम कर रहे हैं। आई थिंक एक बहुत होप है हमारे लिए कि चीज़ें बदलेंगी बहुत जल्दी। ठीक है, जल्दी बदलने की उम्मीद पे तो दुनिया कायम होता है, लेकिन सबसे बड़ी बात हम आपसे ये करना चाह रहे हैं और ख़ास करके आपके पर्सनल लाइफ से एक दो सवाल मैं करना। आपको कब पता चला कि आप LGBT कम्युनिटी से हैं और किस तरह से फैमिली ने आपको संभाला या फैमिली में नाराज़गी रही? आई चूज़ नॉट टू आंसर। ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को बाद आपको लगता है कि आप लोग की लाइफ में काफ़ी सुधार हो? मुझे एज अ कम्युनिटी मुझे लगता है कि काफ़ी सुधार होगा और जो भी चीज़ें हैं बहुत वेलकमिंग है। अगर मैं ये पीछे देखूं कि हम 20 साल से एक तरह से स्ट्रगल शुरू हुआ, लेकिन अगर आप देखें जो इम्पैक्ट जो 5 साल में सुप्रीम कोर्ट ने किया विद दिस हिस्टोरिक जजमेंट, जब 2018 में उन्होंने डीक्रिमिनलाइज कर दिया, अब बहुत से लोग खुल करके बात कर रहे हैं। उनको ये फ़र्क नहीं पड़ता लोग कैसे जज करेंगे, एंड आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो मूवमेंट कायम हो और चीज़ें बदले उसके आधार पे। आई थिंक हम 5 साल में अगर देखें तो मुझे लगता है कि काफ़ी हम लोग प्रोग्रेस किए हैं इस चीज़ों को लेकर के, और अब धीरे धीरे चीज़ें नॉर्मलाइज हो गई हैं। कहीं ऐसा टैबू नहीं रहा कि ओ समबडी इज़ गे। चलिए, आपका धन्यवाद। तो इस तरह से बता रहे थे कि अब इनकी उम्मीदें और ज़्यादा जाग गई है और जो इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था वो अब नहीं होगा और आने वाले टाइम में इनके जो अधिकार हैं ये इन्हें मिलेंगे। और अगर हम बात करें तो ये जो है ये एक स्प्लिट जजमेंट था। मेजॉरिटी व्यू सुप्रीम कोर्ट का था क्योंकि 5 जज का संविधान बेंच था ये, तो 5 जजेस में यूनैनिमिटी नहीं थी, एक थॉट प्रोसेस नहीं था। अलग जजेस ने अलग जो न्यायाधीश हैं उन्होंने अलग जजमेंट दिया है। इस वजह से हर जज ने अपना जजमेंट अलग पढ़ा, मगर मेजॉरिटी व्यू कहीं ना कहीं इस समलैंगिक विवाह के खिलाफ थी और उनकी सोच ये थी कि ये कहीं ना कहीं संसद को इसको लेकर कानून बनाना चाहिए और कहीं ना कहीं जैसे केंद्र ने कहा है कि कमेटी बनाई जाए, कि कमेटी का गठन होकर इस पे सोच विचार करना की आवश्यकता है। मनोहर, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? बिल्कुल आवाज आ रही है, सवाल दोहराएं। मनोहर, मैं पूछ रहा था क्योंकि 5 जज का बेंच था ये, तो अलग अलग जो न्यायाधीश हैं उन्होंने अलग अलग फैसले सुनाए हैं। मेजॉरिटी व्यू ये है कि समलैंगिक विवाह के खिलाफ मेजॉरिटी व्यू रही है, मगर क्योंकि हर जज की अलग राय थी इस वजह से हर जज ने अपना जजमेंट अलग पढ़ा और अपनी राय जो है वो अलग व्यक्त की।
देखिए बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि जिस प्रकार से हम जस्टिस रविंद्र भट्ट की बात करें तो उनका थोड़ा डिस्क्रिमिनेशंस को लेकर के अलग राय थी। अब लेकिन जो मेजोरिटी थी या जस्टिस कॉल की हम बात करें, मेजर जो 5 जजों में से थे उनमें से ज़्यादा का यही कहना था कि ये संभव नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है सो कानून की व्याख्या कर सकता है, कानून नहीं बना सकता। ये संसद के पास ये अधिकार हैं कि किस प्रकार से हम इनमें संशोधन करें, किस प्रकार से तमाम, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो करीब 160 के आसपास ऐसे कानूनी प्रावधान है जिसमें बदलाव करने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये सारी चीज़ें जो है सो संसद के पास है। तो ऐसी स्थिति में समलैंगिक विवाह के अधिकार को मान्यता देने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया। लेकिन जो LGBTQI प्लस के लोगों का ये कहना है कि चलिए कुछ नहीं तो सही, थोड़ा बहुत तो मिला, जो ये लगातार 5 सालों से लड़ाई लड़ रहे थे वो इन्हें हासिल हुआ है। हम फिर कोशिश करेंगे कुछ लोगों से और बात करने के लिए कि यहाँ आप देखिए ये सुप्रीम कोर्ट के सामने का नज़ारा है, जहाँ सभी लोग आ रहे हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं और अपनी राय रख रहे हैं कि क्योंकि हमारे साथ सिद्धांत अब जुड़ गए हैं, छत्तीसगढ़ से आते हैं। सिद्धांत, जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के संविधान बेंच के 5 जजों में आपसी सहमति नहीं थी, लेकिन मेजॉरिटी जो ज़्यादा थी वो था कि आप लोग को समलैंगिक विवाह का अधिकार न दिया जाए, क्या कहेंगे? मैं तो काफ़ी वेलकम करता हूं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे फेवर में थे और इट्स ए प्रोसेस और हमें इस प्रोसेस को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। बिंग इनटू कम्युनिटी एज ए क्वेयर पर्सन आई एम सेइंग, क्योंकि काफ़ी वक्त लगा है। 2016 से राइट टू प्रिवेसी आना, 2018 में 377 वर्डिक्ट आना, एंड देन आज इतना अच्छा बातें तो हुई कि उन्होंने रूरल एरिया की लोगों की बातें की, उन्होंने ट्रांसजेंडर वुमेन को एज वुमेन आइडेंटिफाई करके मैरिज करने की राइट्स के बारे में बात की, ट्रांस मैन को एज मैन आइडेंटिफाई करके मैरिज करने की राइट्स की बात की। तो इट्स ए गुड आई थिंक इट्स ए ग्रीन सिग्नल so that maybe in few years we can get that privilege that we can marry and legally register that we are couple, same sex couple, right? So I'm hopeful, I'm very hopeful and also welcoming whatever they said today. सुप्रीम कोर्ट ने एडॉप्शंस की बात कही है, आप लोग को वो राइट्स भी देने की बात कही है, लेकिन जहाँ तक आपकी फैसिलिटीज़ का सवाल है, इसके लिए एक कमेटी बनाने की बात कही है, क्या कहेंगे? तो जिस तरह से उन्होंने कहा कि सारे स्टेट्स लेवल पे उन्होंने एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉ के बारे में बात की कि कोई भी स्टेट इस पर्टिकुलर अगर कोई सेम सेक्स कपल कोई कोर्ट पे जाके स्टेट लेवल के कोर्ट पे जाके मैरिज के लिए रजिस्टर करते हैं, सो दे नीड टू एक्सेप्ट दैट, दे डोंट नीड टू डिस्क्रिमिनेट दैट, राइट? तो इट्स ए गुड साइन ऑफ कोर्स। तो ऑफ कोर्स जब कमेटी बनेगी तो ये डायरेक्शन स्टेट लेवल में भी जाएगी और स्टेट लेवल में जाएगी तो छोटे से छोटे जगह में लोग खुल के सामने आएंगे। अपने आप की पहले सेक्सुअलिटी को लेके एक्सेप्टेंस रखते थे, अभी अपनी पार्टनर्स को लेके वो खुल के सामने आएंगे दैट आई एम ए गे पर्सन एंड आई हैव ए पार्टनर हु इज़ ऑल्सो गे, और आई एम ए लेस्बियन पर्सन, आई हैव ए पार्टनर हु इज़ लेस्बियन, और आई एम ए ट्रांस वुमन पर्सन, आई हैव ए पार्टनर दैट कैन बी ए हेटेरोसेक्सुअल पर्सन और ट्रांस मैन पर्सन, राइट? तो ऑफ कोर्स इट्स ए ग्रीन सिग्नल आई कैन से। तो लोगों को खुल के सामने आने की एक मौका मिलेगा। अभी इतने सारे लोग देख रहे हैं, शायद मेन स्ट्रीम होने के भी चांसेस और बढ़ जाएगी, घर में एक्सेप्टेंस की लेवल और ज़्यादा बढ़ जाएगी। सो आई एम हैप्पी अबाउट इट एंड वी आर होपफुल कि अगले कुछ सालों में मे बी वी कैन गेट दैट राइट दैट वी कैन रजिस्टर लीगली दैट हुएवर आई एम लविंग आई कैन मैरी दैट पर्सन लीगली। सो या मैं आपके पर्सनल लाइफ के बारे में भी थोड़ा सा जानना चाहता हूँ, कब आपको इस तरह की चीज़ें पता चली कि आप क्यूअर हैं? एक पर्टिकुलर एज होने के बाद हमें समझ में आता है कि हमें क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद है। इवन आई एम नॉट बीइंग क्वेयर, इवन आप भी जब छोटे रहे होंगे आपको नहीं पता होगा कि आपकी पसंद क्या है और क्या पसंद नहीं है। जब आप धीरे धीरे बड़े होते हैं ना, फिर आपको समझ में आता है, आपकी समझदारी बढ़ती है, तो आप समझ सकते हैं कि आपकी पसंद क्या है, नहीं पसंद क्या है। तो जब मैं स्कूल में था आई अट्रैक्टेड टूवर्ड्स मैन दैट आई न्यू, एंड धीरे धीरे मुझे ये आके समझ में आया कि मैं एक लड़का हूँ और जो मेरी पर्सनल जो अनुभूति है, मैं एक लड़के के लिए ही अट्रैक्ट होता हूँ और आगे जाके मुझे अगर किसी से प्यार करना हुआ, किसी से शादी करना हुआ तो वो एक लड़का ही होगा जी। तो इसमें कोई डाउट नहीं है और ना ही में कोई, लेकिन ग्रीन सिग्नल मिल चुका है। यस बिल्कुल लेने हैं, ग्रीन सिग्नल मिल चुका है। जी मनोहर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे संग जुड़ने के लिए। बने रहिए आप हमारे संग, ये प्रतिक्रियाएं आप लगातार लेते रहिए, हम आपके पास वापस लौटेंगे। फिलहाल कुछ और मेहमानों का रुख मैं करना चाहता हूं। हमारे संग
सुप्रीम कोर्ट के वकील भी जुड़ गए हैं. अनिमेश रस्तोगी इज लाइव विद अस. अनिमेश, योर फर्स्ट रिएक्शन टू दिस order, the Supreme Court verdict which has come on the same-sex marriage? How do you interpret it? How do you read it? You see, there are few points which Supreme Court made very clear that Supreme Court is not a proper authority to enact the law. Supreme Court can only, interpret the law. However, Supreme Court has given various protection to these groups, and Supreme Court have also asked the police to give them protection in certain cases. So this is a welcoming move. Supreme Court has also formed a committee to, further enact the law by the Parliament. See, Parliament is supreme in our country. Therefore, Parliament is the proper authority to enact the law. As far as because if the Supreme Court interpret the Special Marriage Act in a way that it will have to, many enactments will be amended thereafter. So Supreme Court did not touch that subject. However, Supreme Court has given various reliefs to them, which is a welcoming move. However, it was a split verdict, but it is a welcoming move. मोहब्बत की बात करते हैं, रिश्ते की बात करते हैं, तो इसे लेकर क्या? मुझे लगता है अब टेक्स्ट बुक्स में इनफैक्ट लड़का लड़का दिखाना बहुत ज़रूरी है, लड़की लड़की दिखाना ज़रूरी है. जब आप एक फैमिली की बात करते हैं तो फैमिली में सिर्फ एक लड़का, एक लड़की और एक बच्चा नहीं आता है. उसमें एक लड़का लड़का और एक बच्चा हो सकता है, जैसे हमने अडॉप्शन वाली बात कही है. एक लड़की लड़की और एक बच्चा हो सकता है, वो भी हो सकता है. ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को स्कूल टाइम से ही पता चले कि व्हाट इज़ गे, व्हाट इज़ लेस्बियन, एंड उसको लेकर के एक ऐसा एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाए ताकि जब बच्चे बड़े हो तो उनको ये आइडेंटिटी ना ढूंढनी पड़े और समाज को एक टाइम पे चेंज अपने आप को करना पड़ेगा. एंड आई थिंक ये बहुत राइट टाइम है इंडिया एज अ कंट्री के लिए टू चेंज करने के लिए. मैं बहुत फेवरेबल में हूँ, जैसा कि कहा गया है. बहुत से लोग इस पे काम कर रहे हैं. आई थिंक एक बहुत होप है हमारे लिए कि चीज़ें बदलेंगी बहुत जल्दी. ठीक है, जल्दी बदलने की उम्मीद पे तो दुनिया कायम होता है, लेकिन सबसे बड़ी बात हम आपसे ये करना चाह रहे हैं और ख़ास करके आपके पर्सनल लाइफ से एक दो सवाल मैं करना. आपको कब पता चला कि आप LGBT कम्युनिटी से हैं और किस तरह से फैमिली ने आपको संभाला या फैमिली में नाराज़गी रही? आई चूज़ नॉट टू आंसर. ठीक है. सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को बाद आपको लगता है कि आप लोग की लाइफ में काफ़ी सुधार हो? मुझे एज अ कम्युनिटी मुझे लगता है कि काफ़ी सुधार होगा और जो भी चीज़ें हैं वो बहुत वेलकमिंग है. अगर मैं ये पीछे देखूं कि हम 20 साल से एक तरह से स्ट्रगल शुरू हुआ, लेकिन अगर आप देखें जो इम्पैक्ट जो 5 साल में सुप्रीम कोर्ट ने किया विद दिस हिस्टोरिक जजमेंट, जब 2018 में उन्होंने डीक्रिमिनलाइज कर दिया, अब बहुत से लोग खुल करके बात कर रहे हैं. उनको ये फ़र्क नहीं पड़ता लोग कैसे जज करेंगे, एंड आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो मूवमेंट कायम हो और चीज़ें बदले उसके आधार पे. आई थिंक हम 5 साल में अगर देखें तो मुझे लगता है कि काफ़ी हम लोग प्रोग्रेस किए हैं इस चीज़ों को लेकर के, और अब धीरे धीरे चीज़ें नॉर्मलाइज हो गई हैं. कहीं ऐसा टैबू नहीं रहा कि ओ समबडी इज़ गे. चलिए, आपका धन्यवाद. तो इस तरह से बता रहे थे कि अब इनकी उम्मीदें और ज़्यादा जाग गई है और जो इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था वो अब नहीं होगा और आने वाले टाइम में इनके जो अधिकार हैं ये इन्हें मिलेंगे. और अगर हम बात करें तो ये जो है ये एक स्प्लिट जजमेंट था. मेजॉरिटी व्यू सुप्रीम कोर्ट का था क्योंकि 5 जज का संविधान बेंच था ये, तो 5 जजेस में यूनैनिमिटी नहीं थी, एक थॉट प्रोसेस नहीं था. अलग जजेस ने अलग जो न्यायाधीश हैं उन्होंने अलग जजमेंट दिया है. इस वजह से हर जज ने अपना जजमेंट अलग पढ़ा, मगर मेजॉरिटी व्यू कहीं ना कहीं इस समलैंगिक विवाह के खिलाफ थी और उनकी सोच ये थी कि ये कहीं ना कहीं संसद को इसको लेकर कानून बनाना चाहिए और कहीं ना कहीं जैसे केंद्र ने कहा है कि कमेटी बनाई जाए, कि कमेटी का गठन होकर इस पे सोच विचार करना की आवश्यकता है. मनोहर, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? बिल्कुल आवाज आ रही है, सवाल दोहराएं. मनोहर, मैं पूछ रहा था क्योंकि 5 जज का बेंच था ये, तो अलग अलग जो न्यायाधीश हैं उन्होंने अलग अलग फैसले सुनाए हैं. मेजॉरिटी व्यू ये है कि समलैंगिक विवाह के खिलाफ मेजॉरिटी व्यू रही है, मगर क्योंकि हर जज की अलग राय थी इस वजह से हर जज ने अपना जजमेंट अलग पढ़ा और अपनी राय जो है वो अलग व्यक्त की.
देखिए बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि जिस प्रकार से हम जस्टिस रविंद्र भट्ट की बात करें तो उनका थोड़ा डिस्क्रिमिनेशंस को लेकर के अलग राय थी। अब लेकिन जो मेजोरिटी थी या जस्टिस कॉल की हम बात करें, मेजर जो 5 जजों में से थे उनमें से ज़्यादा का यही कहना था कि ये संभव नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है सो कानून की व्याख्या कर सकता है, कानून नहीं बना सकता। ये संसद के पास ये अधिकार हैं कि किस प्रकार से हम इनमें संशोधन करें, किस प्रकार से तमाम, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो करीब 160 के आसपास ऐसे कानूनी प्रावधान है जिसमें बदलाव करने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये सारी चीज़ें जो है सो संसद के पास है। तो ऐसी स्थिति में समलैंगिक विवाह के अधिकार को मान्यता देने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया। लेकिन जो LGBTQI प्लस के लोगों का ये कहना है कि चलिए कुछ नहीं तो सही, थोड़ा बहुत तो मिला। जो ये लगातार 5 सालों से लड़ाई लड़ रहे थे वो इन्हें हासिल हुआ है। हम फिर कोशिश करेंगे कुछ लोगों से और बात करने के लिए कि यहाँ आप देखिए ये सुप्रीम कोर्ट के सामने का नज़ारा है, जहाँ सभी लोग आ रहे हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं और अपनी राय रख रहे हैं कि क्योंकि हमारे साथ सिद्धांत अब जुड़ गए हैं, छत्तीसगढ़ से आते हैं। सिद्धांत, जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के संविधान बेंच के 5 जजों में आपसी सहमति नहीं थी, लेकिन मेजॉरिटी जो ज़्यादा थी वो था कि आप लोग को समलैंगिक विवाह का अधिकार न दिया जाए। क्या कहेंगे? मैं तो काफ़ी वेलकम करता हूं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे फेवर में थे और इट्स ए प्रोसेस और हमें इस प्रोसेस को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। बिंग इनटू कम्युनिटी एज ए क्वेयर पर्सन आई एम सेइंग, क्योंकि काफ़ी वक्त लगा है। 2016 से राइट टू प्रिवेसी आना, 2018 में 377 वर्डिक्ट आना, एंड देन आज इतना अच्छा बातें तो हुई कि उन्होंने रूरल एरिया की लोगों की बातें की, उन्होंने ट्रांसजेंडर वुमेन को एज वुमेन आइडेंटिफाई करके मैरिज करने की राइट्स के बारे में बात की, ट्रांस मैन को एज मैन आइडेंटिफाई करके मैरिज करने की राइट्स की बात की। तो इट्स ए गुड आई थिंक इट्स ए ग्रीन सिग्नल so that maybe in few years we can get that privilege that we can marry and legally register that we are couple, same sex couple, right? So I'm hopeful, I'm very hopeful and also welcoming whatever they said today. सुप्रीम कोर्ट ने एडॉप्शंस की बात कही है, आप लोग को वो राइट्स भी देने की बात कही है, लेकिन जहाँ तक आपकी फैसिलिटीज़ का सवाल है, इसके लिए एक कमेटी बनाने की बात कही है। क्या कहेंगे? तो जिस तरह से उन्होंने कहा कि सारे स्टेट्स लेवल पे उन्होंने एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉ के बारे में बात की कि कोई भी स्टेट इस पर्टिकुलर अगर कोई सेम सेक्स कपल कोई कोर्ट पे जाके स्टेट लेवल के कोर्ट पे जाके मैरिज के लिए रजिस्टर करते हैं, सो दे नीड टू एक्सेप्ट दैट, दे डोंट नीड टू डिस्क्रिमिनेट दैट, राइट? तो इट्स ए गुड साइन ऑफ कोर्स। तो ऑफ कोर्स जब कमेटी बनेगी तो ये डायरेक्शन स्टेट लेवल में भी जाएगी और स्टेट लेवल में जाएगी तो छोटे से छोटे जगह में लोग खुल के सामने आएंगे। अपने आप की पहले सेक्सुअलिटी को लेके एक्सेप्टेंस रखते थे, अभी अपनी पार्टनर्स को लेके वो खुल के सामने आएंगे दैट आई एम ए गे पर्सन एंड आई हैव ए पार्टनर हु इज़ ऑल्सो गे, और आई एम ए लेस्बियन पर्सन, आई हैव ए पार्टनर हु इज़ लेस्बियन, और आई एम ए ट्रांस वुमन पर्सन, आई हैव ए पार्टनर दैट कैन बी ए हेटेरोसेक्सुअल पर्सन और ट्रांस मैन पर्सन, राइट? तो ऑफ कोर्स इट्स ए ग्रीन सिग्नल आई कैन से। तो लोगों को खुल के सामने आने की एक मौका मिलेगा। अभी इतने सारे लोग देख रहे हैं, शायद मेन स्ट्रीम होने के भी चांसेस और बढ़ जाएगी, घर में एक्सेप्टेंस की लेवल और ज़्यादा बढ़ जाएगी। सो आई एम हैप्पी अबाउट इट एंड वी आर होपफुल कि अगले कुछ सालों में मे बी वी कैन गेट दैट राइट दैट वी कैन रजिस्टर लीगली दैट हुएवर आई एम लविंग आई कैन मैरी दैट पर्सन लीगली। So, yeah. मैं आपके पर्सनल लाइफ के बारे में भी थोड़ा सा जानना चाहता हूँ। कब आपको इस तरह की चीज़ें पता चली कि आप क्यूअर हैं? एक पर्टिकुलर एज होने के बाद हमें समझ में आता है कि हमें क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद है। इवन आई एम नॉट बीइंग क्वेयर, इवन आप भी जब छोटे रहे होंगे आपको नहीं पता होगा कि आपकी पसंद क्या है और क्या पसंद नहीं है। जब आप धीरे धीरे बड़े होते हैं ना, फिर आपको समझ में आता है, आपकी समझदारी बढ़ती है, तो आप समझ सकते हैं कि आपकी पसंद क्या है, नहीं पसंद क्या है। तो जब मैं स्कूल में था आई अट्रैक्टेड टूवर्ड्स मैन दैट आई न्यू, एंड धीरे धीरे मुझे ये आके समझ में आया कि मैं एक लड़का हूँ और जो मेरी पर्सनल जो अनुभूति है, मैं एक लड़के के लिए ही अट्रैक्ट होता हूँ और आगे जाके मुझे अगर किसी से प्यार करना हुआ, किसी से शादी करना हुआ तो वो एक लड़का ही होगा जी। तो इसमें कोई डाउट नहीं है और ना ही में कोई, लेकिन ग्रीन सिग्नल मिल चुका है। यस बिल्कुल लेने हैं, ग्रीन सिग्नल मिल जी चुका जी है। मनोहर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे संग जुड़ने के लिए। बने रहिए आप हमारे संग, ये प्रतिक्रियाएं आप लगातार लेते रहिए, हम आपके पास वापस लौटेंगे। फिलहाल कुछ और मेहमानों का रुख मैं करना चाहता हूं। हमारे संग
सुप्रीम कोर्ट के वकील भी जुड़ गए हैं. अनिमेश रस्तोगी is live with us. Animesh, your first reaction to this order, the Supreme Court verdict which has come on the same-sex marriage. How do you interpret it? How do you read it? You see, there are few points which Supreme Court made very clear, that Supreme Court is not a proper authority to enact the law. Supreme Court can only, interpret the law. However, Supreme Court has given various protection to these groups, and Supreme Court have also asked the police to give them protection in certain cases. So this is a welcoming move. Supreme Court has also formed a committee to, further enact the law by the parliament. See, parliament is supreme in our country. Therefore, parliament is the proper authority to enact the law. As far as because if the Supreme Court interpret the Special Marriage Act in a way that it will have to, many enactments will be amended thereafter. So Supreme Court did not touch that subject. However, Supreme Court has given various reliefs to them, which is a welcoming move. However, it was a split verdict, but it is a welcoming move. Okay. As far as the verdict is concerned, let me bring in Neeti Shukla as well for her view, trans rights activist. Neeti, we were speaking to you a short while back. Is this a setback for you? Is this a setback for the trans community? Is this a setback for the petitioners? How do you react to the verdict? Yeah, it's sad news that court has not accept this decision. As a trans rights activist, मैं यही कहना चाहूँगी, once you remove the section 377, it means we are accepting homosexual couple in the society. We are ready to accept them. So they have to legalize the marriage also, so that they can live as a heterosexual couple are living in the society, and they are getting all rights. Same homosexual couple has to get all rights of the society. And we keep fighting for this, and will not be quiet. Government and society both have to give the rights to get married for the legal marriage for the homosexuality couple. It's a must, because after they leave a partner to spend rest of their life. कब तक ये लोग ऐसी जिंदगी अपने अकेले ही काटेंगे? And it's a serious issue. If will not legalize, will हम इनको एक सोसाइटी की तरह अपने एक कल्चर नहीं दे सकते हैं, तो the results will be not good in the next 10 years of the society. As I am seeing, I am fighting with the transgenders, and they are known as sex workers only, so which I don't want. They are known as beggars only, which I don't want now. They have to live like me, as I am getting a quality life. They also has to right to get a quality life. Thank you. Okay, thank you Neeti Shukla for joining us with your view on that story. Let me also bring in Animesh once again back on the broadcast. Animesh, as far as this particular, let me get in Vineet Jindal as well, I'm being told, Supreme Court lawyer who's joining us live. Vineet Jindal, welcome to the show. Your first reaction to the verdict, how are you reading it? Supreme Court has given a special direction to constitute a committee, and I think this is a good decision to stop any kind of discrimination to the human being. Basically, I'm not saying anything about the way put by the other panelists on a different news channel. So it is, for my point of view, it is a matter of human right. So that discrimination should not be done. And as for our constitutional things, it has been specially mentioned by the Honorable Supreme Court that there is no constitutional right of marriage has been granted to these persons. So that's why this their petition has been not been allowed. The marriage between two has not been allowed. So I think this is a good decision, and the Constitutional Committee, a high power committee in this regard, to stop any kind of discrimination, and the right has to be given as per the normalized people. So I think it should be a good decision by the Supreme Court itself. Okay, you believe it's a good decision. Obviously, Animesh wants to respond to you. Yes, Animesh. The most important takeaway from this judgment is Supreme Court has abolished CASA regulation, wherein the queer and unmarried couple can also adopt a child. That's very important takeaway from this judgment. Yes, they have said that there should be no discrimination vis-a-vis adoption. Yes. Do you believe that will be very helpful for this community? And whatever Supreme Court has written, Supreme Court has said that a single parent can also raise a good human being or a child.
So there's no point that only a married couple could only adopt a child. It is also a queer couple who can also adopt a child, and an unmarried person can also adopt a child. So therefore, it is a very important takeaway from this judgment. Yes, it's an important takeaway, no doubt. But also, the fact, of course, is, Vineet, that the Supreme Court has formed a committee. That is what the centre was advocating. They've also said that the Parliament, if they want, can enact a law. Yes. Somewhat transferring this to, the legislature. Yes, definitely. And as Mr. Amish is talking about, there are certain right has been already been given in this judgment itself, as in respect of the bank account could be open in the name of any cure, and the other regular life and daily routine things should be right of living the life in appropriate manner had already been granted by the Supreme Court by its judgment. So I think in respect of marriage purpose, definitely this is a very critical aspect, and it should be taken care by the Parliament itself. And I appreciate the verdict given by the Supreme Court, as the centre has already been advocate about forming a committee before passing any kind of directions. So that has been agreed, and Supreme Court specifically stated about this thing that a committee should be formed. And in respect of marriage and the other right which has not been given in this judgment, it should be taken care by that high power committee, and appropriate recommendation could be done, and the Parliament should take note upon this recommendation. So it should be I think it would be a good aspect in respect of a people who is also a citizen of our country as a human being. Definitely it is a good take by the government and the Supreme Court, we can say, and I hope a good outcome would be we have seen a good outcome in the future itself. Yes, also, now interestingly, we will have to wait and watch to see how this committee is formulated, what the committee's ambit will be. But obviously, the Supreme Court saying that it should discuss this issue further, also saying that discrimination must end. And, it listed a host of areas in which there needs to be more sensitization and better, cooperation for the LGBTQ community in the country. Animesh. Yes, Supreme Court has said once you are a citizen of this country, you have a fundamental right, constitutional right, which cannot be taken away by anyone, right? So there cannot be any discrimination from transgenders or queer couple. So therefore, constitutional right has to be upheld. But Supreme Court also further said that it cannot enact the law. A law has to be enacted by the Parliament only. But what I feel is Supreme Court could have also given some time frame for the committee to submit its report. However, no time frame is given. But I'm sure that they will definitely do their job to the best of their ability, and it is a welcoming move. And Supreme Court has given a lot of rights to the queer couple, and protections are also being provided. Police are given certain directions, and they can also now adopt the child. So it is a welcoming move. Yes. Now, as far as Vineet, the adoption rights are concerned, now, how will this translate into action? Because the Supreme Court has given this big, relief for the, LGBTQ community as far as the adoption is concerned, where they face, hurdles and hassles in adoption. They've said that there should be no discrimination in that aspect. Yes, look, we have seen so many discrimination, and it is also about the change in society, the mindset of the society. So it is not only about the adoption. The adoption can be done now, but I think the more important aspect is the change of mind in the society, because even after this judgment, I think there much more things should be done on the grassroots level in respect of the mindset which has been in our society, that the this cure has cannot be human being kind of thing, and they have a different aspects to live their life. So it should be taken care first, and adoption, definitely they have their heart in their body. So definitely they are not emotionless, and they can love anyone. They can take care of if they are willing to take anyone as an adopted child.
So definitely it should be done, and by this judgment, this right has been given, and I think this is a very crucial step taken by this judgment by the Honorable Supreme Court, and definitely every citizen of this country definitely welcome this move. Yes, let me also ask you very quickly now on on the fact that the Supreme Court, interestingly, Vineet, said that marriage is not a fundamental right, which is why they obviously have decided to rule against same-sex marriage, against the legalization so far. Yes, there are different acts which have been working in respect of the marriage in our country. Like Muslim have a different act, and Hindus has been considered a different act. Even the Constitution has specially mentioned about the marriage can be done through their own procedure, like Hindu Marriage Act and Muslim Marriage Act. So when it is talking about a specific aspect of marriage, I think this aspect could be done on the social and on the religious ground also. So that's why I think the constitutional has also mentioned about this thing, the reason, the relation to a marriage to a religion. So this is the reason I think behind this specific aspect, which has been not been given the right of marriage, the constitutional right, as far as a religion aspect, which has been there while considering marriage. So I think this is the reason why the Supreme Court has not been given right to marriage to occur or same-sex gender. So I think this is also a very considered move and in respect of a human and constitutional right, which has not been granted in our constitution to a same-sex marriage. Yes, let me take that back across to Animesh. Animesh, it was interestingly not a completely unanimous verdict, was it? Was that something you were expecting? The fact that there would be a certain, differentiation in the views, there would be obviously differences in the views expressed by the various judges. It was a 5-judge bench after all. Yes, see, all judges are, after all, they are all human beings. They can have their own set of opinions within the framework of the law, right? I will not say which judge has said right and which has said wrong. I will not take sides over here. But whatever judges have expressed, I respect that. And split verdict doesn't mean that right will be taken away. Split verdict is always good for society to debate further. See, Supreme Court has left it open for the government of India to, enact the law. Split verdict are always, read, and we can take points from the split verdict. And since it is a complex society, ours is a complex society, we welcome the split verdict as well, because the split verdict gives us a different horizon altogether to be debated. So Supreme Court has left it open for the government to further enact laws as far as same-sex marriage is concerned. Therefore, the committee was formed. I think committee will be headed by a cabinet secretary, and I hope they do a good job. All right, we're getting more reactions coming in now on this story. We as gays and lesbians have not got the right of marriage or even civil partnership. So it's a mixed judgment, and what all I could say is this fight doesn't stop here, it continues, and we will be hoping that the central government, which talks about Sabka Saath and Sabka Vikas, will include queer people in the Sabka Saath as well. Thank you so much. All right. Well, those were, of course, reactions coming in on that big story. Let's also quickly bring in Vineet back onto the broadcast. Vineet Jindal, as far as now the government is concerned, because the ambit has really turned now to the government, what do you believe will be their outlook? Okay, we've lost Vineet Jindal there, unfortunately. Let me bring back in Animesh Rastogi now. Animesh, the ball is now in the government's court, although the government has indicated that it is not in favor of same-sex marriage. What do you believe will be the next step in this particular case? Do you believe the petitioners will file a review?
Do you believe the petitioners will file a review, or do you believe, before that perhaps we will see a committee set up very soon? Yeah, see, government has taken a specific stand before cannot be. However, the Supreme Court had formed a committee and asked the committee to, see what best can be done for them. See, government can change its view if the committee. We all have to be accommodating. If my view today is something else, but if somebody is able to convince me, yes, this is right for the society, of course, we should agree and follow that. The government has to take a stand in this matter. I just want to say, the government and society as well has to be sensitized regarding the LGBTQ community. Indeed, they are human beings. They have a full right to live as per the Article 21 and right to privacy and right to live. See, once there is a constitutional right, nobody can take away the constitutional right. Even the government cannot take away your constitutional right until unless there is some exceptional circumstances. So, Supreme Court has made it clear that you have a constitutional right. There cannot be any discrimination, and I'm sure the government will look into the matter and bring in some law for the community. More reactions coming in. सोसाइटी में कपल जो साथ में रहते हैं, जो जिनको राइट टू यूनियन बोला गया है, हर एक इंसान को, हर एक कम्युनिटी के मेंबर को अपनी चॉइस के पार्टनर चूज़ करने का पूरा अधिकार है. अब राइट टू यूनियन के अंदर कोई डिस्क्रिमिनेशन होता है, फैमिली ऑब्जेक्ट करती है या सोसाइटी ऑब्जेक्ट करती है उस चीज़ के लिए, उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा. तो उन्होंने कुछ गवर्नमेंट को और कुछ उन्होंने पुलिस को कुछ गाइडलाइन दी है टू फॉलो. अगर कुछ डिस्क्रिमिनेशन होता है तो उसको रिजॉल्व करना, उस पर एक्ट करना बहुत ज़रूरी है. सो सबसे अच्छी बात है जो कुछ अच्छे पॉइंटर्स और जो लीगलाइज हुए हैं कुछ चीज़ें, अडॉप्शन क्वेयर पीपल कर सकते हैं, और ट्रांस कपल जो हैं, ट्रांस वुमेन हेट्रोसेक्सुअल मेन से, और या ट्रांस मेन हेट्रोसेक्सुअल वुमेन से शादी कर सकते हैं, वाइस वर्सा. सो कुछ चीज़ें आई हैं पॉजिटिव. तो लीगली आप लोग शादी नहीं कर सकते. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.